Okay, these are examples of clear discrimination. What kind of examples? These two examples of Swadesh Kumar and of females, they were not allowed to speak on news channels. Okay, yes, these are examples of clear discrimination. In one instance, the discrimination is based on caste, okay, in Swadesh Kumar, and other is based on gender. Do you think that such discrimination is justified? So they are asking you as students, क्या आपको लगता है that these examples of Swadesh Kumar or order being passed on females not reading news is justified? क्या वो justice को serve कर रहा है? Is it just? Okay. So of course this is not justified because we live in a democratic country. We have fundamental rights, and our fundamental rights clearly says that we should practice equality and we should not discriminate on the grounds of caste or on the basis of gender. Right to equality tries to do away with such and other discrimination. It provides for equal access to public places like shops, hotels, places of entertainment, wells, bathing ghats and places of worship. So they are saying right to equality क्या करती है? किसी भी इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन या कोई और डिस्क्रिमिनेशन, ओके, जिसमें वी कैन से कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है सो उसे डू अवे करती है. दैट मीन्स उसे हटाने की कोशिश करती है बिकॉज वी हैव इक्वालिटी एज आवर फंडामेंटल राइट्स. एंड इसी रिगार्ड में सिंस वी ऑल आर इक्वल थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो एवरीवन हैज़ एक्सेस. हम हर पब्लिक चीज़ का एक्सेस कर सकते हैं. दैट इज शॉप्स, होटल्स, प्लेस ऑफ entertainment. Now these can be your theaters, your malls, or places like we have in Rithala, Metro Walk, where we have swings or any such kind of thing. Or we can say even if we go to Pritampura, we have different kinds of festival celebrations. So everybody is allowed in the public places. Okay, they can make use of public places. There cannot be any kind of any discrimination in this access on the grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth. So आप इन बेसिस पे किसी भी circumstances में भेदभाव नहीं कर सकते. Okay, it also prohibits any discrimination in public employment on any of the above mentioned basis. This right is very important because our society did not practice equal access in the past. Also, what are they saying? They are saying आप इनमें से किसी भी grounds में while you are giving public while you are giving government job आप discriminate नहीं कर सकते. Let's for example, you cannot say that you are a female so you are not allowed in this government job. No, गवर्नमेंट जॉब का एक प्रोसीजर है. यू हैव टू गो थ्रू द एग्ज़ाम, यू हैव टू गो थ्रू द इंटरव्यू. इफ़ यू विल पास इट, यू विल क्लियर इट. सो आप कास्ट, रेस और रिलीजन इन सारे ग्राउंड्स पे किसी भी वे में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ओके, यूजिंग पब्लिक प्लेसेस. ऑल्सो दे आर सेइंग इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव दिस राइट्स बिकॉज हमारा पास्ट हिस्ट्री ऐसा रहा है. वी हैड कास्ट सिस्टम. Even caste system is strongly practiced now also till date also. So that is why हमारे लिए बहुत important था that हम right to equality यूज़ करें और right to equality practice करें, उसको constitution में mention करें and उसे protect करें because हमारा history unequal रहा है. The practice of untouchability is one of the crudest manifestation of equality. This had been abolished अंडर द राइट टू इक्वालिटी. ओके, ये सबसे मीन प्रैक्टिस इन पास्ट में रहा है और हमने इस प्रैक्टिस को रिमूव करने की कोशिश की है. हाउ? बाय हैविंग दिस राइट टू इक्वालिटी. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू इक्वालिटी एंड वी आर क्लियरली सेइंग दैट वी कैन नॉट हैव डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सो हम अनटचेबिलिटी के सिस्टम को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देते हैं. The same right also provides that the state shall confer no title on a person except those who excel themselves in military or academics. Thus,
Rights to Equality strives to make India a true democracy by ensuring a sense of equality or dignity and status among all its citizens. Now, what are they saying? In the same way, हमने लोगों के नाम के आगे से टाइटल भी हटा दिया है बिकॉज वी बिलीव इन राइट टू इक्वालिटी फर्स्ट थिंग. सो नो वन कैन हैव टाइटल्स, ओके, बट वी कैन ओनली हैव टाइटल्स जो मिलिट्री जॉब से रिलेटेड है या जो अकेडमिक फील्ड से रिलेटेड है. सो इन दिस वे हम ट्रू डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और लोगों की डिग्निटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू से दैट सिंस एवरीबडी इज़ इक्वल, if we allow people to have titles, so what we are trying to do, हम एक पास सिस्टम को ही लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हमने ऑलरेडी ख़त्म करने की कोशिश की. इफ़ आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ टाइटल, वो एक सुप्रीमेसी दिखाता है, वो ये दिखाता है दैट आई एम अबव व्हेन यू आर लो. सो इफ़ टाइटल्स आर देयर, सो अगेन डिस्क्रिमिनेशन होगा. सो दैट इज़ वाई since we follow the principle of equality, so to have title is removed from this fundamental rights. Have you read the preamble to our constitution? How does it describe equality? You will find that the preamble mentions two things about equality, that is equality of status and equality of opportunity. I'm sure you must be aware of what is preamble as of now. So preamble is basically the introduction to the constitution. So they are saying, have you ever read preamble? और अगर आपने preamble पढ़ा है so आपको पता होगा that when we are talking equality, preamble उसमें दो चीज़ें describe करता है कि किस चीज़ की equality होनी चाहिए, equality of status and equality of opportunity. Now let us study what is this status and what is this opportunity. Equality of opportunity means that all sections of society enjoy equal opportunities, but in a society where there are various kinds of social inequalities, what does equal opportunity means? So they are saying everybody is equal in terms of, or in before the law. So everybody should have equal opportunity. So let's suppose I am saying that I live in a village, ठीक है. सो क्या विलेजर के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जितनी आपके पास है एज अ अर्बन चाइल्ड? नो. यू हैव बुक्स, यू हैव इंटरनेट फैसिलिटीज़. नाउ इट इज़ अ कंडीशन ऑफ पेंडेमिक, यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, ओके. व्हाट अबाउट रूरल किड्स? डू दे हैव एक्सेस टू इंटरनेट? नो. इंटरनेट है भी तो क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है? नो. आर टीचर्स मोर इंटरेस्टेड देयर टू टीच? नो. आर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अवेयर दैट मच? नो. सो फिर अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल हुई? नो. दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. हमने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो दे दिया बाय लॉ, बट हमारी सोसाइटी की कंडीशंस ऐसी है दैट सर्टन काइंड्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़, दैट इज़ सोसाइटी में, व्हेन आई एम सेइंग सोशल दैट मीन्स सोसाइटी में ऑलरेडी इनइक्वालिटीज़ बहुत सारी है. सो कैसे हम इंजॉय कर पाएंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी को? सो दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क. The Constitution clarifies that government can implement special schemes and measures for improving the condition of certain section of society, children, women, and the socially and educationally backward classes. So what are they saying? They are saying since हमारी society ही socially unequal है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, और वी कैन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग. कोई बर्थ, किसी को कोई प्रॉब्लम है, लिम्स नहीं है, पैरालिसिस है, और आई विजन कम है, somebody is perfectly born healthy by naturally only. सो हम इक्वल तो नहीं है सोसाइटी के लेवल पे. सो फॉर दैट गवर्नमेंट के पास ये राइट है एंड गवर्नमेंट एक्चुअली स्पेशल स्कीम्स बना सकते हैं. क्यों? ताकि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी में, वी कैन से चिल्ड्रन, वुमेन, या जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए हम लॉज बना सके सो दैट वो सोसाइटी में अपलिफ्ट कर सके. ओके. यू मे हैव हर्ड अबाउट रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशन. You would have wondered why there are reservation if we follow the principle of equality.
सो नाउ रिजर्वेशन इज़ वन थिंग जो एक्चुअली स्टूडेंट्स को इतना डीपली नहीं पता होता है, एंड दे स्टार्ट सेइंग कि यूजुअली वी स्टार्ट डिबेटिंग दैट रिजर्वेशन इज़ रॉन्ग, that somebody getting 60% and they are getting admission, and somebody getting 90% are not getting admission. So reservation, now you as a political science student will learn here that कैसे reservation justified है, okay, in jobs and admissions. Now they are saying अगर आप प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को फॉलो करते हो तो आपको समझ आएगा नो, रिजर्वेशन was fine. In fact, Article 16(4) of the Constitution explicitly clarifies that a policy like reservation will not be seen as violation of right to equality. Okay? When we will read Article 64, तो ये clearly हमें क्या समझाता है कि reservation किसी भी तरीके से आपकी फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं करता. यू कैनॉट से कि ये अनईक्वल है, ये अनइक्वालिटी क्रिएट करता है रिजर्वेशन. इंस्टेड वो इक्वालिटी क्रिएट करता है. वाई? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट हमारी सोसाइटी में पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जिसकी वजह से हर किसी को इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई. सो जिस क्लास को पहले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई उसके लिए हमने स्पेशल स्कीम्स बनाई हमारी गवर्नमेंट ने, सो दैट वो थोड़ा ऊपर उठ सके. तो उनके लिए हमने कुछ स्पेशल स्कीम्स बनाने की कोशिश करी. सो रिजर्वेशन बेसिकली एक उसी तरीके का स्पेशल स्कीम है जो पास्ट में हमने डिस्क्रिमिनेशन किया है लोगों के बीच में, और जिसकी वजह से अ सर्टेन कास्ट वाज नॉट अलाउड टू स्टडी. तो जब उन्होंने कभी स्टडी ही नहीं किया है और आप अब बोल रहे हो एकदम से कि रेस नीड टू बी फेयर, सबको स्टार्टिंग लाइन से भगाओ, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल? नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी प्रिंसिपल, व्हाट इज़ इक्वल? दैट देयर हैज़ बीन सर्टेन सेक्शंस जिनको हमेशा से राइट टू एजुकेशन मिला है, सो दे हैव द राइट टू एजुकेशन वाइल सम वर नॉट इवन अलाउड टू गो टू स्कूल. सो हमने उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें करी हैं. एंड व्हाट इज़ दैट स्पेशल थिंग? दैट इज़ रिजर्वेशन, कि आपको थोड़ा से कम परसेंट पे हम आपको भी अलाउ करेंगे टू कम एंड टेक जॉब्स. If you see the spirit of the Constitution, this is required for the fulfillment of right to equality of opportunity, which I have just explained you.